Hello students, myself Sapna Kashyap, and till now we have completed few topics of class 12th macroeconomics, but today I am going to teach you a very important topic of class 11th. So in class 11th we study microeconomics. In microeconomics we have 4 units, and our fourth unit, which is very important, we have two chapters. One is forms of market and the other one is the chapter is market equilibrium under perfect competition. Students, this chapter is very important and it is a little tricky also because we need to study the diagrams in this chapter. So today in this video, I will be teaching you how to draw the correct diagram and how to write the correct explanation of those diagrams. So let's start with the chapter. As we all know, the name of the chapter is market equilibrium under perfect competition. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्केट इक्विलिब्रियम और परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग एक बार डिस्क्राइब करूंगी. सबसे पहले आपको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए. जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा, व्हाट इज अ परफेक्ट कंपटीशन? अ परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर large number of buyers and large number of sellers exist and they all are producing and selling the homogeneous goods. So now here we'll be starting with the topic which is market equilibrium. So what is market equilibrium? Students, market equilibrium is a situation where market demand is equal to market supply. For example, we can say where demand of a product in the market is equal to supply of a product. So what is market equilibrium? Market equilibrium is a situation where market demand is equal to market supply, or we can say where the forces of demand and supply intersect each other is known as market equilibrium. Now after studying the market equilibrium, next is equilibrium price and equilibrium quantity. So what is equilibrium price? Equilibrium price is the price which is corresponding to the point of market equilibrium. उस मार्केट इक्विलिब्रियम के सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, जो प्राइस है, उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे और उस क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे. मैं आपको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ a schedule. So let's start with the help of a schedule. If I'll draw a schedule here, first I'll be writing price, second quantity supplied and quantity demanded. Let price is 10, 20, 30, 40, 50. Supply is 100, 200, 300, 400, 500, and quantity demanded is 500, 400, 300, 200, 100. So how I have drawn this schedule? First you understand this thing. ये मैंने कैसे बनाया? आपको इसके लिए डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट्स रिकॉल करने पड़ेंगे. डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. इट मीन्स किसी प्रोडक्ट के जब प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड फॉल करती है. इसलिए यहाँ प्राइसेस जब 10, 20, 30, 40, 50 थे तो डिमांड 500, 400, 300, 200, 100 थी. मतलब जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं इसकी डिमांड जो है वो फॉल कर रही है. बट प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. मतलब कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे सप्लाई भी बढ़ेगी. तो यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होगा? मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं. तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है वेयर सप्लाई इज 300 एंड डिमांड इज ऑल्सो 300, तो इसे हम इस पॉइंट को हम बोलेंगे दिस पॉइंट इज मार्केट इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम है. और ये जो प्राइस है 30, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? 300. राइट? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं. मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर द मार्केट डिमांड
is equal to market supply. So here dx is equal to, at this point, dx is equal to demand of a product is equal to supply of that product. और इसके ऊपर यहाँ डिमांड ज़्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड 500 है, सप्लाई 100 है, यहाँ डिमांड 400 है, सप्लाई 200 है, और इसके नीचे यहाँ क्या है, सप्लाई 400, डिमांड 200, मीन्स सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, राइट। अब इसके बाद मैं इसका टेबल ड्रॉ करूंगी और इसको टेबल की हेल्प से शो करूंगी। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग सेम टॉपिक विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। So till now before explaining this diagram I have shown you the market equilibrium with the help of a schedule. अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, मार्केट इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन है जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। तो ये डी डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है। ये मेरा सप्लाई कर्व है जो अपवर्ड स्लोपिंग है और ये प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। ये दोनों आपस में पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पॉइंट ई क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके सामने हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ओ एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पे प्राइसेस लिए हैं। तो ये ओ पी इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं और ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हमें डायग्राम बना के हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। विल बी राइटिंग इन द अबव डायग्राम वी हैव टेकन क्वांटिटी ऑन ओ एक्स एक्सिस, प्राइसेस ऑन ओ वाई एक्सिस, राइट। डी डी इज द डिमांड कर्व, एस एस इज द सप्लाई कर्व। पॉइंट ई where demand and supply intersect each other or where demand is equal to supply is known as the market equilibrium. So point E is a market equilibrium and OP is a equilibrium price which is corresponding to equilibrium, market equilibrium point, and OQ is the equilibrium quantity which is corresponding to equilibrium point, right? अब इसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट हम करेंगे वो है हमारे पास एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का। सो दिस इज द सेकंड टॉपिक नाउ, व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज एक्सेस सप्लाई। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। आफ्टर इक्विलिब्रियम वी हैव टू स्टार्ट विद द टू टॉपिक, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। सो दिस इज द टॉपिक एक्सेस डिमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होता क्या है? एक्सेस डिमांड एक वो सिचुएशन होती है जहां मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। जब हमारी डिमांड, मार्केट डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उसे हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। अब इसको अगर मैं आपको इस टेबल की हेल्प से शो करूं या स्केड्यूल से, तो आप ये सेम स्केड्यूल है जो मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए पहले बनाया था। अब देखो प्राइजेस 10, 20, 30, 40, 50 हैं। यहाँ डिमांड 500, 400, 300, 200, 100 है और सप्लाई 100, 200, 300, 400 एंड 500 है। ये तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में इक्वल है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले डिमांड 500 है तो सप्लाई 100 है, जब डिमांड 400 है तो सप्लाई 200 है। दोनों ही सिचुएशन में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड, राइट। सो एक्सेस, सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ऑलवेज अकर्स बिफोर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। आप जब भी कभी इसको बनाओगे, इस डायग्राम को बनाओगे, इसे बनाने का करेक्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप डिमांड कर्व बनाओगे, फिर सप्लाई कर्व बनाओगे। जहाँ दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। बट नॉर्मली जो स्टूडेंट्स इसे ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, फिर इस बॉक्स में से एक लाइन ऐसे खींचते हैं और फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। दिस इज टोटली अ रॉन्ग मेथड। अगर आप डायग्राम ही गलत बनाओगे, ये पूरा चैप्टर ही डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आप डायग्राम्स ही गलत बनाओगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन भी गलत होगी।
तो आपको समझना ज़रूरी है, पहले मैंने डिमांड कर्व बनाया, फिर सप्लाई कर्व बनाया, इन दोनों पॉइंट ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, उसके सामने मैंने एक प्राइस लाइन बनाई और इसके नीचे एक क्वांटिटी लाइन बनाई, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एज आई हैव टोल्ड यू हियर, एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और दूसरी चीज़ जो आप हमेशा याद रखोगे कि सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ऑलवेज अकर्स बिफोर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैं कोई पर्सन इक्विलिब्रियम से कम प्राइस पे कोई चीज़ सेल करता है, लेट हियर इफ आई वांट टू सेल अ प्रोडक्ट एट प्राइस P0 और P0, अब प्राइस कम है, इस प्राइस पे मेरी सप्लाई होगी ये P0A, लेकिन जो डिमांड होगी वो होगी P0B। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, वेरी ऑब्वियस। अगर प्राइजेस कम होंगे स्टूडेंट्स, अगर प्राइजेस कम होंगे तो कम प्राइस पे हम ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए तैयार होंगे, लेकिन कम प्राइस पे सेलर ज़्यादा बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इतने कम प्राइस पे सेलर सिर्फ इतना सेल करने के लिए रेडी है, बट खरीदने वाले इतने ज़्यादा हैं। तो जो ये गैप है बीच का ए और बी, इस गैप को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ सिचुएशन नोन एज एक्सेस डिमांड। इसे हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कहते हैं। और हम इस एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वी विल बी राइटिंग that excess demand means demand is greater than supply and at this point demand is very high and supply is very low। तो अगर मेरी डिमांड बहुत कम है, किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उस प्रोडक्ट के प्राइजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे और हम वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो आपको एक्सेस डिमांड में ये स्केड्यूल बनाना है और ये डायग्राम बनाना है। प्लीज़ आप इसे एक बार ध्यान से देख लो। उसके बाद हम सेकेंड डायग्राम जो है वो एक्सेस सप्लाई का वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस सप्लाई विच इज़ टोटली ऑपोजिट टू एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस सप्लाई मीन्स व्हेन मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। एक्सेस सप्लाई इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद जब प्राइसेस 40 और 50 हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड 200 और 100 है, बट इसकी सप्लाई 400 और 500 है। इट मीन्स यहाँ दोनों ही केसेस में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इट मीन्स दिस सिचुएशन अराइज ऑलवेज आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये जो मेरा पॉइंट OP इक्विलिब्रियम पॉइंट है, OP इक्विलिब्रियम प्राइस है और E इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके बाद अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा कोई प्राइस चार्ज करने की या कोट करता है, लेट हमने प्राइसेस किसी प्रोडक्ट के फिक्स कर दिए OP1, तो OP1 प्राइस पे डिमांड है हमारे पास P1C, लेकिन जो सप्लाई है वो P1D। ऑब्वियस है, वही सेम एक्सप्लेनेशन। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो इतने हाई प्राइस पे डिमांड बहुत कम होगी, बट इतने हाई प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा होगी बिकॉज सेलर्स आर रेडी टू सेल मोर एट हाई प्राइसेस। तो इसलिए यहाँ पर डिमांड सिर्फ P1C है लेकिन सप्लाई P1D है। तो ये जो गैप है C और D, इसे हम इस गैप को हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2 ways। एक तो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछते हैं कि एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और मे बी एक्सेस सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल और डायग्राम। और दूसरा जो थोड़ा सा इसे घुमा के या ट्रिकी करके पूछते हैं, तो क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट एक्सप्लेन अ सिचुएशन व्हेन प्राइजेस आर लोअर देन द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जब प्राइजेस इक्विलिब्रियम पॉइंट से कम होंगे तो वो कौन सी सिचुएशन होगी? वो सिचुएशन होगी एक्सेस डिमांड की, जो मैंने आपको इससे पहले करवाया। और अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन प्राइजेस आर हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइजेस आर हायर, मार्केट प्राइस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, राइट।
और दोनों ही डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, हमें कोई भी डायग्राम अगर आप बिना एक्सप्लेनेशन के बनाओगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। लाइक हम सिंपली लिखते हैं कि ओ एक्स एक्सिस पे वी हैव टेकन क्वांटिटी, ऑन ओ वाई एक्सिस वी हैव टेकन प्राइस, डी डी इज द डिमांड कर्व, एस एस इज द सप्लाई कर्व, ई is the market equilibrium point where the forces of demand and supply intersect each other. Now, when prices are OP, this situation or this gap CD is a gap of excess supply, because here market demand is P1D but market supply is P1. P1C is the demand and P1D is the supply. So, this gap CD refers to a situation of excess supply. So, revise these two concepts. Thank you, students.